Nidhi, what should be the second form of correct? The second form of correct should be corrected. Shiva, what should be the third form of correct? The third form of correct should be corrected. Sir, board is dancing. Yes, it is Garba going on. That's why. Navratri is going on, Garba. That's why the board is dancing. Is it visible, Bacho? Yes, Yes, sir, sir, it it is is. clearly visible. Completely Clearly visible. visible. Thank you. Should I use blue color? Is it visible? Blue color is visible to you? Yes, sir, it is. Can anybody ask? No, Shivang will ask related question. Nidhi Didi, what is correct? Shiva, correct is noun, adjective. Namrata, what is the Hindi meaning of correct? The Hindi meaning of correct is galti sudharna. Sahi. Sorry. Sorry. The Hindi meaning of correct is sahi. Sivang, Have I what given you? is No, sir, you have not given us. Namrata, what is mole? sir? Mole is the number of. Sorry, sir. Mole is the adjective. Ask next Uh, question. Sivang, what is a mole? What is the Hindi meaning of mole? The Hindi meaning of mole is I don't know. Nidhi Didi, what is the Hindi meaning of mole? The Hindi meaning of mole is til ya massa. Uh, Namrata, can you tell me what is the another Hindi meaning of mole? सर एक्चुअली साइंस पे मोल हम लोग यूज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इट इज नॉट राइट हियर Uh, Shivang, what is the another Hindi meaning of mole? So the another Hindi meaning of mole is chachundar. Ask the Ni- same question to Nidhi Didi. Nidhi Didi, what is the another Hindi meaning of mole? The another Hindi meaning of mole is chachundar. Good morning, Didi. I'm a big Shiva. Uh, Namrita, what is another Hindi meaning of mole? the another Hindi meaning of mole is छछूतर
Okay. Do you know Chachundar? Everybody knows. चूहा तो सभी जानते हैं दोस्तों, लेकिन छछूंदर उसी से मिलता जुलता प्राणी है जो कि घरों की चीजों को काटता नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि कीड़े वगैरह को खाता है। और उसको लक्ष्मी, हमारे यहाँ लक्ष्मी कहते हैं कि उसको रहने दो, भगाओ नहीं। और आप सोच रहे होंगे कि अचानक ये कैसे भी, तो आप जब कभी कोई फॉर्म वगैरह भरेंगे तो उसमें कई बार फॉर्म में चेहरे पे किसी निशान, आइडेंटिफिकेशन पूछी जाती है, तो आप बोल सकते हैं कि देयर इज अ मोल ऑन माय राइट चीक, मोल ऑन लेफ्ट चीक, मोल इन द नेक, मोल इन द फोरहेड, जहाँ पे भी हो आप उसको बता सकते हैं, अगर आपको फॉर्म इंग्लिश में पूरा भरना पड़े। Have you written this? Yes sir, I have written this. Yes. क्या आपने ये लिख लिया है? हाँ सर, मैंने ये लिख लिया है। नम्रता, should I erase? Nidhi, what was the last interactive sentence? So the last interactive sentence was uh, so- go ahead. That is ठीक है, तो कर दीजिए, आगे बढ़ो। Thank you. इडियम के बारे में नम्रता से पूछ। Good morning निधि दीदी। Namrata, what was the last idiom? दीदी, you are not audible. No, she is Last, speaking, but she was not audible. Now she is putting the mouthpiece near her mouth. She is audible. the last idiom was a word to the wise. समझदार को इशारा, that is समझदार को इशारा ही काफी होता है। अब हम जो सवाल कर रहे हैं वो उसका जवाब अभी शिवा तुम मत देना, निधि नहीं देना। नम्रता, तुमने ऐसा कोई सेंटेंस किसी मूवी में डैमेज करके सुना है? डैमेज या ऐसा कुछ बोलते हैं, डैमेज ऐसा कुछ? सर डैम इट होता है शायद, वो डैम इट। चलो हम इससे नेहा से पूछते हैं, बहुत देर से इसका कुछ नहीं बोला। इसकी स्पेलिंग बता सकती हो बेटा नेहा? सर डैमेज या डैमेज? जो भी तुमने सुना। DAMI G डैमेज S। वेरी गुड। रोशनी भी मौजूद है बेटा, रोशनी तुम बता सकते हो? सर डैमेज, DAMAGE। वेरी गुड। शिवांग, तुम्हें मिला होगा ना बेटा ये इंटरेक्टिव? बताओ बेटा, व्हाट इज दिस स्पेलिंग? Damn it. DEMATE. Damn IT. इसलिए मैं वो शब्द जानबूझ के सही नहीं बोल रहा। एक बार स्क्रीन पे आ गई तो फिर पूछने का कोई मतलब नहीं। जिसका सीसी ऑन होगा उसने देख लिया होगा, और जो थोड़ा सा अवेयर होगा। बच्चों, ये स्पेलिंग होती है, तो व्हाट इज साइलेंट इन दिस स्पेलिंग?
N is silent in this spelling. N is N is silent to this. Rashmi, is it visible to you clearly? Yes, sir, it is visible to me. Okay. Can you tell me Hindi meaning of this interact? Can you tell me, Neha? Nidhi, can you tell me? yes, sir. Damn it. That is धत तेरे की सत्यानाश. Shivan, start the creativity and call another name. Once I am repairing my mobile, so I forgot to use camera. So I said, damn it. एक बार मैं अपना मोबाइल सुधार रहा था तो कैमरा भूल गया तो मैंने कहा धत तेरी की सत्यानाश. निधि दीदी. Damn it. The power is cut. धत तेरे की लाइट चली गई यार. Very Who is nice. ready? जिससे ना बने वो ऐसा बस बोल दे. और इसमें रेडी मत पूछो, सीधे नाम लेना. जिससे Okay, बने भी Namrata. वो. हाँ. I'm going somewhere and my fuel was empty suddenly. So I said, damn it. मैं जा रही थी और गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया तो मैंने कहा धत तेरी की. दीदी गुड मॉर्निंग. Who is ready? रोशनी. नेहा. Damn it. धत तेरे की सत्यानाश. नेहा. I can't have medicine. So my mom, my sister, damn it. My sister say me, damn it. मैंने मेडिसिन खाना मैं मेडिसिन नहीं खा सकी तो मेरी सिस्टर ने कहा धत तेरी की. Who is rest? Who is ready? Nobody is rest. Nobody is ready. This is today's idiom. Beta Roshni, can you guess the Hindi meaning? It is very easy. सही बोलना. Very nice. Neha, can you guess? Namrata, can you guess? Yes sir. Truth is bitter. That is सत्य कड़वा होता है. बहुत आसान है, बहुत सुना हुआ है अपन सभी है. शिवांग, स्टार्ट. क्रिएटिविटी करना तो क्रिएटिविटी कर लो, नहीं तो यही काम करते हैं बेटा, नहीं तो ये लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं. पहले एज इट इज बोल दो सीधा सीधा और नाम पुकारते जाओ. दूसरे राउंड में क्रिएटिविटी जिसको करना हो. ट्रुथ इज बिटर. सच कड़वा होता है. निधि दीदी. Yes, Sivang, I know that. I know. Truth is bitter. हाँ शिवांग, मैं जानती हूँ कि सच कड़वा होता है. नम्रता. Yes Nidhi. It is the damn truth. Truth is bitter. यह बिल्कुल सच है कि सच कड़वा होता है. रोशनी. ट्रुथ इज बेटर. सच कड़वा होता है. Sorry, come सॉरी, again. योर प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग. ट्रुथ इज बेटर. Sorry. बिटर. ट्रुथ इज Yeah. बिटर. सच कड़वा होता है. नेहा.
ट्रुथ इज बिटर, सच कड़वा होता है। शिवांग, आर ऑल डन? Yes, sir. All are done. शिवांग, क्या सभी का हो गया है? हाँ सर, सभी का हो गया। आगे पूरा राउंड करो। निधि दीदी, are all done? नो शिवांग, निशा इज रेस्ट। दीदी, क्या सभी का हो गया? नहीं शिवांग, निशा अभी बाकी है। नम्रता, आर ऑल डन? नो निधि, आई थिंक somebody is rest. नम्रता, क्या सभी का हो गया? नहीं निधि, शायद कोई बचा है। अच्छा, गुड मॉर्निंग नम्रता। हाँ, ये हमेशा सो जाती है। आई एम अवेक निधि। नेहा, who is rest? आई थिंक निशा जी इज रेस्ट। नेहा, क्या सभी का हो गया? सॉरी, अब छोड़ देते कौन हैं, बचा है? कोई बात नहीं। अगले सवाल पर आते हैं। इस बार हम उससे पूछ, रोशनी, व्हाट इज ट्रुथ? सच, सही। नेहा, व्हाट इज ट्रुथ? ट्रुथ इज नम्रता, व्हाट इज ट्रुथ? ट्रुथ इज नम्रता, व्हाट इज ट्रुथ? Sir, truth is adjective and noun also. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रुथ, नम्रता? Sir, the meaning of truth is such. अब इसका सवाल तो किसी और से करो, ये जो नीचे है। सच बोलना होगा। नहीं, रोशनी से करो इसका सवाल। रोशनी, what is truth? ट्रुथ इज एग्जेक्टिव। नहीं नहीं, ये नहीं करना, तुम गलत करो। चलो हम पूछ लेते हैं। नेहा, व्हाट इज ट्रू? सो ट्रू इज एडजेक्टिव। ट्रू क्या है? ट्रू इज चलो, एडजेक्टिव सर। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ ट्रू? नेहा दीदी, गुड मॉर्निंग। निधि, सर नम्रता, सर ट्रू Sir, इज हिंदी मीनिंग, द हिंदी नम्रता, मीनिंग ऑफ ट्रू इज सच्चाई। कभी कभी इसको असली भी बोल देते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ आते हैं। ये फील्ड वर्क जैसा है, ये जो कर बता सके अभी तुरंत वो बता देना, नहीं तो बाद में भी। एक मीनिंग तो मैंने यहाँ लिख दिया है, BITTER, बेटर। चलो फिर भी पूछ लेते हैं। खट्टा। रोशनी से पूछते हैं। रोशनी, व्हाट इज बेटर? बिटर एग्जैक्ट बिटर इज एग्जेक्टिव। बेटर क्या है? बिटर एग्जेक्टिव है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेटर? द मीनिंग ऑफ बिटर इज कड़वा। वेरी गुड। अब तुम
इसके बारे में कुछ नेहा से। नेहा, व्हाट इज खट्टा? खट्टा। ये उत्तर सामने लिखा है बेटा। ओके। खट्टा इज एडजेक्टिव। दूसरा सवाल भी कर लो। नहीं, तुम्हें नहीं। नहीं करना, जिसने तुमसे किया है उसको कर। ओके सर। व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ खट्टा? नेहा, व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ खट्टा? रुक जाओ रुक जाओ। अब बच्चों ये तुम्हारे सामने एक, ये जो चीजें हैं हम इसलिए नहीं बता रहे, ये बिल्कुल हमारे आसपास की चीजें हैं, चाहे कोई व्यक्ति गांव का हो चाहे शहर का हो। इसका गांव शहर से या पढ़े लिखे होने से कोई मतलब नहीं है, ये हमारे रोज की जिंदगी में काम में आती है और कहीं ना कहीं हम सुनते हैं, कहीं ना कहीं लिखा हुआ देखते हैं। तो चलो आज चर्चा करते हैं। अभी हम निधि को रोक के रखेंगे क्योंकि उसको लिखवा दिया है हमने, और शिवांग को रोक के रखेंगे। तो नेहा, रोशनी और नम्रता बताइए, इसमें से जिसका भी इंग्लिश मीनिंग किसी को पता हो वो बताता है। सर, तीखा मतलब स्पाइसी। ये एकदम गलत है। सर कड़वा, बेटर। वो तो हमने लिख दिया, ये लिखा। अनदर मीनिंग। अब जो इसने गलत उत्तर दिया मैं उसको उत्तर लिख देता हूँ। स्पाइसी का अर्थ होता है बेटा मसालेदार, स्पाइस यानी मसाला होता है, हम सब जानते हैं। अब जिसको जो भी पता हो, अभी चाहे तो अभी बता सकते हैं, नहीं तो कल बता सकते हैं। सर खट्टा का क्या? सर खट्टा का पिकल होगा क्या? पिकल यानी अचार होता है। लेकिन हाँ, एक खट्टा, अच्छी बात चलिए। समझ में आई कि कम से कम तुम्हें एक शब्द तो ज्ञात था जो उसके आसपास का है। मैंगो पिकल लिखा रहता है, अगर रेडीमेड लेकर आते हैं आप, मैंगो पिकल, आम का अचार, मिक्स पिकल, मिक्स अचार, ये लिख जरूर लो। हालांकि नहीं भी लिखोगे तो ये रिकॉर्डिंग तो मौजूद है ही, लेकिन बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे तो लिख लो, अगर मीनिंग में लिखना हो। हम शिवांग से और निधि से नहीं पूछेंगे। और इसको ऐसा मत करना नम्रता, नेहा और रोशनी कि जाके फट से गूगल में देख ले, वो तो आसान है। थोड़ा कोशिश करना कि हम अपने माहौल में हमने कहीं देखा सुना है, ऐसी कोशिश करना। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये कोई आवश्यक नहीं है, ये हम आपको थोड़ा एक्टिव बनाना चाहते हैं। दोस्तों अभी अपन अपने बैच को 7 से 8 बजे तक ही रख रहे हैं, संख्या को देखते हुए आगे जरूरत पड़ी तो बढ़ाएंगे। तो 1 घंटे में अगर आप केवल ऐसा सोच के कि 1 घंटे में हम इंग्लिश सीख जाएंगे, तो इसकी जगह आपको अपनी मानसिकता को थोड़ा बदलना है बेटा। नेहा तुम भी बदलो, निधि की बदल चुकी है, और रोशनी तुम भी बदलो। तुम्हारे आसपास ये सारी चीजें मौजूद रहती हैं, किचन में रहती हैं, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, तो कोई ना किसी के मुंह से सुनने मिलता है या कहीं लिखा होता है। बेटा रोशनी, नमकीन का इंग्लिश तो बता ही सकती होगी तुम और नेहा, ये ज्यादा कठिन शब्द नहीं। सर एक्चुअली मंचूरियन। मंचूरियन चाइनीज कुजीन की एक डिश का नाम मंचूरियन बेटा।
सर ये इनकी इंग्लिश मीनिंग में होती बतानी है, लाइक खट्टा, हम्म श्योर। कम अगेन, सर नम्रता नॉट सर लिसनिंग। इनकी मीनिंग बतानी है क्या, लाइक खट्टा का श्योर। हाँ, अरे वाह, इतनी देर से तुम समझ नहीं पाए। कैन यू टेल मी द स्पेलिंग? सर मैं सोच रही थी कि बिटर के सारे मीन्स तो आपने लिख दिए हैं, अब और क्या बचेगा। नहीं बिटर बेटा, गार्ड ही बचता है फिर। अब ये हमें जानना है। सर कम अगेन खट्टा का सौर, और स्पेलिंग। इनका सॉल्टी, स्पेलिंग। SAOUR। सर सॉल्टी नमकीन का नहीं होगा। बेटा नेहा, रोशनी, कभी कहीं शादी वादी में या कहीं रेस्टोरेंट में ऐसा किसी को सुना नहीं तुमने बोलते हुए, हॉट एंड सॉर सूप ले आइए? कौन सा सूप लेंगे? हॉट एंड सॉर सबसे फेमस है। सर सुना है बट याद नहीं आ रहा। सर तीखा का चिल। हाँ, वेरी गुड। हाँ, सुने हैं ये सब। अपोजिट। एक्चुअली चिल नहीं होता है, चिली होता है। हम सोच सर रहे थे कोई ना कोई ये बोलेगा। बेटा चिली नाउन है और उसका अर्थ होता है मिर्च। सर चिल्ड नहीं होगा। हाँ, वेरी गुड, हम यहाँ चिल लिख दे रहे हैं। शिवांग, व्हाट इज, चलो बहुत देर से इसमें निधि ने कुछ नहीं बोला। निधि, व्हाट इज चिल? Chilled is adjective. चलो इसका मीनिंग पूछ ले शिवांग से। Shivang, what is the meaning of chilled? The meaning of chilled is should be must be. Sorry. The, the meaning of chilled should be ठंडा। Sorry, Shivang. Where are you? नम्रता, तुमने नमकीन का बता दिया था बेटा, ये बहुत कॉमन है। ये सर रोशनी नहीं बता पाई और सॉल्टी, हाँ हाँ, कम अगेन। SAULTY, सॉल्टी। अरे सॉल्ट की इसकी स्पेलिंग क्या होती है बेटा? सॉल्ट, ये लिखी आ रही देखो। SALTY, सॉल्टी। सॉल्ट, बस ये सब सबको दिक्कत होती है, हर बैच में दिक्कत होती है, ये नहीं बता पाते थी। और तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, ये लोग, इन लोगों से अभी हम पूछ ले तो ये लोग अंदर से आप तो रो रहे हैं क्योंकि हम बता चुके हैं। इतना सरल शब्द है, मात्र 3 लेटर का, बच्चा बच्चा जानता है तीखे के। Sir, I have to say something. लेकिन बेटा बताना नहीं, रॉन टाइम नहीं करना, नहीं तो इसका इसके बारे में बोलो। सर आदि है वो वन है चैप्टर, और उसमें पूरा मतलब 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताया है। तो ये टेंथ के बारे में इसकी पूरा एक चैप्टर है, ये सॉल्ट मतलब जितने जो टेस्ट होती है ना, पूरा एक चैप्टर है अभी से। क्लास फर्स्ट, ही इज इन क्लास फर्स्ट। ये देखो, तो आसपास अगर कहीं बच्चे उपलब्ध हो तो उनको पढ़ाना शुरू कर दो फ्री में, फिर देखो कैसे इम्प्रूव होती है इंग्लिश। हम इसलिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं, इतनी देर में जिसने नहीं लिखा होगा वो लिख लेगा। चिल्ड बियर बहुत बोलते हैं, लिखा रहता है दुकान के सामने, यहाँ चिल्ड बियर उपलब्ध है। क्योंकि बियर अगर जरा भी गर्म हुई तो फिर वो अच्छी नहीं लगती है, वो हमेशा एकदम चिल्ड होना चाहिए, एकदम ठंडी। और ये सभी स्वाद है, तो ये एडजेक्टिव होते हैं, विशेषता बतलाते हैं कि ये चीज कैसी है, खट्टी, ये चीज कैसी है, कड़वी। ये विशेषण, विशेषता बतलाते हैं। और अधिकतर बच्चे चिली बोल देते हैं, तो चिली का नाम है चिली या मिर्च।
और स्पाइसी उसने बोला था। हाँ, ये बड़ी खुशी हुई कि कम से कम रोशनी ने कुछ तो, हाँ, जो कुछ बोलना चाह रहे बोलो बोलो। आया? सर मैंने चिल्ड ही सुना है अभी तक, कि यदि कोई चीज एक्सट्रीम है तो वी कैन से चिल्ड। बेटा चिल्ड बियर अभी हमने बोला तो कभी सुना यस होगा। सर, यस सर। तो अरे यार तुम लोग देखना, तुम्हारे घर में कोई सा भी फ्रिज हो तो ऊपर जहां बर्फ जमती है उसके नीचे एक प्लेट में इसी का नाम लिखा मिल जाएगा यार। सर हॉट है क्या? चिलर लिखा मिलेगा तुम्हें। चिलर, फ्रिज के अंदर। सर हॉट ना? किसी का ध्यान गया चिलर शब्द पे? बेटा शिवांग अभी जाके फ्रिज खोल के देख लो, तुम चाहो जिसके घर में हो वो प्लेट में हो सकता है लिखा हो, क्योंकि हमने तो देखा है। अब वहां पे क्या मतलब होगा चिलर का? मतलब जहाँ पे आपकी बर्फ जम जाती है। नेहा ने बता दिया और वो सही बताया। हम बहुत देर से उसको निग्लेक्ट कर रहे थे। दिस कलर इज विजिबल। हॉट मतलब तो गर्म होता ना। सर हाँ, ये आया था मेरे दिमाग में। वेरी नाइस। इसलिए हमने बोला था नम्रता कि 3 लेटर का है और हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन 27 साल से हॉट का एक मतलब राधा ने सिखाया है, गरम, है ना? तो अपन वो पकड़ के चले आ रहे। और अब देखो बेटा, तुम्हें थोड़ा सा शर्म जरूर आएगी। क्या नाम है, रोशनी, सभी को आएगी। अब हम जो ये दिखाने जा रहे हैं पैकेट, ये तुमने भी कभी ना कभी यूज किया होगा, किराने की दुकान से लाए होगे। ये एक कंपनी है, हम यहाँ पे कैमरा ये वाला यूज कर रहे हैं। प्रिया नाम की कंपनी है, प्रिया पनीर बटर मसाला। ठीक है, तो ऐसे पैकेट मिलते हैं, लेकर आओ और उसमें पनीर मिलाओ, पट्ट से आपका पनीर तैयार। अब यहाँ देखो जहाँ गोला लगा है, मैं उसको नजदीक रख रहा हूँ। नम्रता बेटा पढ़ के सुनाना। मीडियम हॉट। हाँ, और उसमें 3 क्या बनी हुई है? सर 3 मिर्च बनी है, जिसमें से 2 हैं वो रेड हॉट हैं और हाँ, एक क्योंकि नहीं है, तो मीडियम है ना स्वीट है। बेटा, इसलिए 2 को लाल कर दिया। अगर बहुत यस। बहुत ज्यादा तीखा होता ये मसाला तो फिर तो क्या होता? सर तीनों रेड होती, हाँ, ये वाली लाल भी रेड मिर्च। हो जाती, तो वो ऐसा हो जाता। बेटा नेहा तुम भी पढ़ दो जरा। मीडियम हॉट। रोशनी, मीडियम हॉट। निधि तुम निधि इसको दीदी। ज्यादा ज्यादा तीखा करके पढ़ो जरा। हाई हॉट। हाँ, और शिवांग तुम इसको कैसे पढ़ोगे? ज्यादा तीखा करना है तो तुम। हाय हो। हाँ, म्यूट कर लो, ठीक है। कैन यू नम्रता, ट्राई? एक्सट्रीम हॉट। यस, ऐसा बोलेंगे एक्सट्रीम हॉट, या एक शब्द और है मैक्सिमम हॉट। वैसे एक्सट्रीम ही ज्यादा सही है। तो बताओ रोशनी, तुम सोच के देखो, और नेहा, कि क्या ये पैकेट किराने की दुकान से आपने खरीदा तो क्या तुम जल जाओगे उसमें? छूते ही साथ गरम गरम लगेगा क्या? सोच के देखो। किराने की दुकान में गरम गरम पैकेट तो नहीं मिलेगा ना बेटा। तो यहाँ हॉट का क्या अर्थ? यही हम एक्चुअली यही बता रहे हैं बेटा तुम लोगों को। तुम लोग अभी तक समझ नहीं रहे हो। तुम्हारी किचन में इतनी इंग्लिश मौजूद है, हमें तो कई बार आश्चर्य होता है, नेहा और रोशनी, तुम लोगों का, कि यार कितनी इंग्लिश। तुम कोई भी पैकेट पर कोशिश तो करो, कई बार तो उसमें इधर हिंदी इधर इंग्लिश दोनों लिखा है। कभी अपनी तरफ से एक
तुम लोग का नेचर जिज्ञासु नहीं है, जानने की इच्छा वाला। कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे किचन में ही इतने पैकेट मिल जाएंगे कि यू विल गेट सो मच इंग्लिश, बहुत सारी इंग्लिश। चलिए दोस्तों, आज अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कैन के लिए एक पेज छोड़ दीजिए रजिस्टर में, दूसरे पेज पर आइए राइट साइड में और अगली हेडिंग लिखिए। शिवांग, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट हेडिंग? Sir, the next heading should be could. Please, absolutely good. निधि दीदी से पूछो, व्हाट शुड बी द स्पेलिंग ऑफ could? Didi, what should be the spelling of could? Shivang, the spelling of could should be COULD. That is could. तो सेम क्वेश्चन आगे बढ़े। Namrata, what should be the spelling of could? Nidhi, the spelling of could is COULD. Roshni, what should be the spelling of could? The spelling of could should be COULD. Could. Neha, what should be the spelling of could? The spelling of could should be COULD. Could. Who is rest? जब कोई रेस्ट न रहे तो शिवांग से पूछ लें। Shivang, what should be the spelling of could? The spelling of could should be COULD. वेरी गुड, थैंक यू। म्यूट कर लो तुरंत, तुम्हारे से बहुत शोर आ रहा है। अब अपन शिवांग को शामिल नहीं करेंगे, कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। दोस्तों, आप ऐसा निशान लगा सकते हो तो हेडिंग के नीचे एक लाइन छोड़ के ऐसा निशान लगा लो, और अगर ऐसा नहीं बनता है तो ये हैश का निशान सबसे आजकल बनने लगा है, वो लगा सकते हो जो तुम्हारे। और बच्चों, आज थोड़ा सा शुद्ध लेख दें तुम लोगों को। शुद्ध लेख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है किसी को? Dictation. सुना है कभी डिक्टेशन? स्पेलिंग इज हियर। आई एम रिपीटिंग, डिक्टेशन, DICTATION। तो चलो हम, बेटा रोशनी इसको बोझ जैसा नहीं लेना नेहा, हम इंग्लिश में बोलेंगे और तुम चाहे उसको गलत लिखो या सही लिख लेना, फिर उसके बाद हम स्पेलिंग भी बता देंगे, तो ऊपर वाली लाइन को काटना मत, नीचे सही लिख। इससे क्या होगा कि तुम्हें अपने अंतर को खुद जानने की एक मौका मिलेगा कि हमने ऐसा लिखा, लिखना ऐसा। छोटी सी लाइन है, ज्यादा इंग्लिश नहीं बनवा रहे हैं, नहीं तो तुम सोच रहे होगे कि इतना बड़ा पैरा लिखवाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, एक सिंगल लाइन है। लिखो, दिस इज द पास्ट ऑफ कैन। There is one negative point in Google that it types everything, so everybody can see it here. I am repeating my sentence, मैं अपना वाक्य दोहरा रहा हूँ। This is the past of can. Can को inverted commas में रखें। Put can in inverted commas. Put can between inverted commas. Can के दोनों तरफ ऐसे inverted comma लगा। अब हम शुरू करते हैं। रोशन, सॉरी, निधि अभी हमने जो बोला बेटा उसको दोहरा दो।
This is the past of can. शिवम. शिवांग को अभी शायद मत कर, उसके यहाँ मेहमान आए हुए हैं। नम्रता. This is the past of can. रोशनी. This is the past of can. Neha. This is the past of can. अब नेहा तुम लगे हाथ, इसका हिंदी बता दो, जो भी तुमसे बने। यह कैन का पास्ट है। वेरी गुड। रोशनी तुम बताओ, तुम्हें कैसे होना? रोशनी यार म्यूट, नाउ यू आर अनम्यूट। यह कैन का पास्ट है। कौन है पता है? चलो नम्रता। कैन का भूतकाल रूप है ये। कौन? कुड। यस, करेक्ट। निधि एक बार हिंदी बोल दो, फिर नेहा बोल देगी, फिर रोशनी बोल देगी, फिर यह है कैन का भूतकाल है। हम थोड़ा सा सुधार देते, बीच में टोक रहे, कोई बात नहीं, इट विल डू, इट विल डू, इट विल डू। अब हम बोल दे रहे हैं, थोड़ी सी साहित्यिक हिंदी हो जाएगी, जिसको लिखना हो लिख लेना। यह कैन का भूतकालिक रूप है। यह कैन का भूतकालिक रूप है। निधि एक बार अब तुम बोल दो। यह कैन का भूतकालिक रूप है। रोशनी। यह कैन का भूतकालिक रूप है। नम्रता दीदी। यह कैन का भूतकालिक रूप है। बताओ रोशनी, कौन है कैन का भूतकालिक रूप? कैन का भूतकालिक रूप कुड है। वेरी गुड, नाइस। नेहा तुम बता दो बेटा एक बार, फिर अपन आगे बढ़े। कैन का भूतकालिक रूप कुड है। म्यूट कर लिया करो नेहा, तुम्हारा भी पूरे समय कोई ना कोई वहां रहता है, तो जैसे तुम्हें शोरगुल सुनाएगी फट से म्यूट कर। चलो सबसे पहले हम रोशनी से सही वो बनवा। बेटा रोशनी, व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। वेरी नाइस, थैंक यू। नेहा बेटा तुम बताओ। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। वेरी गुड। नम्रता। सब्जेक्ट प्लस कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। फर्स्ट फॉर्म आएगी, आर यू श्योर? सर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी क्या? आई थिंक। अब इनको पता नहीं है, ना रोशनी को मालूम है ना नेहा को, इनकी जागरूकता है कम, तो इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया। चलो अब निधि से पूछते हैं। निधि। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। वेरी गुड। शिवा। So subject plus could plus first form of the verb plus object plus extension. यार फर्स्ट फॉर्म क्यों आएगी शिवा? सब कुछ तो पहले से पास्ट है,
सेकेंड फॉर्म रखने की जरूरत ही नहीं है। सही जवाब। रोशनी, सॉरी निधि, तुम बताओ बेटा सेकंड फॉर्म क्यों नहीं आएगा? सर क्योंकि कुड पास्ट है, दैट्स। अब तुम भी यही प्रश्न रोशनी से कर लो। बेटा ये सेम क्वेश्चन हिंदी में रोशनी से पूछ लो। निधि, ओके सर। रोशनी, क्यों फर्स्ट फॉर्म क्यों आएगी इसमें? यू आर म्यूट बेटा। क्योंकि कुड पास्ट है इसलिए। नेहा से पूछो। नेहा, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं आएगी? सॉरी। बढ़िया है ना यार, अच्छा है। देखिए नेहा क्या बोलती है। इसमें फर्स्ट फॉर्म इसलिए आएगी क्योंकि ये कैन का पास्ट है। सही। तुमने सही जवाब दिया नेहा, नहीं तो हम बोलते राम मिलाई जोड़ी एक कान्हा एक कौड़ी। सही अपना। शिवांग। ओके सर, शिवांग। शिवांग ने तो पहले ही जवाब दे दिया है महाराज। नम्रता से पूछो। नम्रता जी, जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आएगी इसमें? का सेकंड फॉर्म है कुड। कुड। नम्रता तुम सोच रहे हो कि सर ने फंसा दिया। हाँ सर, आई गेट कंफ्यूज्ड। देखो बेटा ये ऐसा है, इस क्लास में अपन मंथन करते हैं, थोड़ा खोजबीन करते हैं और इस बहाने थोड़ा सा फन भी कर लेते हैं, चिल आउट कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस ये खुद सहायक क्रिया है, कुड इज हेल्पिंग वर्ब बेटा। चलो फटाफट हम एक राउंड खेलते हैं और आज की क्लास को समाप्त करें। और पहले राउंड में हमेशा हम काय से खेलते हैं बेटा शिवांग? आई। यस, तो तुमसे शुरू होता है। I could have double cheese pizza. मैं डबल चीज पिज्जा खा सकता था। वेरी गुड। अब निधि की बारी। I could recite the poem. वेरी मैं गुड। कविता सुना सकती थी। वेरी गुड। बच्चों स्क्रीन पे रिसाइट वर्ब तो आई गई है, नहीं तो बाद में भी लिख सकते हो। ये पर्टिकुलर वर्ब है दोस्तों कविता आदि सुनाने के लिए। बच्चों के मुंह से आपने सुना होगा बेटा रिसाइट द पोएम, कविता आदि सुनाना। तो हम एक बार बोल देते हैं, आई कुड रिसाइट दिस पोएम। मैं यह पोएम सुना सकता था। रोशनी। नेहा। I could sing even green song. बेटा उसको एवरग्रीन बोलते हैं। ओके सर, एवरग्रीन सॉन्ग। मैं सदाबहार गाने गा सकती थी। बेटा एक छोटी सी चीज सभी लोग समझ लेना, इंग्लिश का ई जहां जहां आएगा अधिकतर जगह उसका उच्चारण ए एडी वाला होगा। ए एडी का सबसे छोटा लेटर है एंड। जब पिक्चर एंड होती तो एंड बोलते हैं कि एंड बोलते हैं, तो इससे याद रहेगा तुम्हें, है ना। एक बार फिर से बोल दो नेहा, कम अगेन। I could sing even green song. चलो बेटा अब मैं हम लिख सदाबहार गाने गा सकती थी। ठीक है बेटा, उच्चारण गलत ही धीरे धीरे सुधर।
चलो रोशनी। Okay, sir. I could sing. Sir, can I make? बन तो गया है बेटा, एक बार और I could. बोलो। बीच में तुम ये रुक के कैन आई क्यों बोल देती हो? 90% बोल दिया था, 10% बाकी तो बोल। Okay, sir. I could sing evergreen song. मैं सदाबहार गाने गा सकती थी। Sorry, हिंदी। you are not putting S. That's why. कम अगेन निधि, व्हाट इज द प्रॉब्लम? Sir, she is using only song and Hindi में गाने. That's why. Oh, very minute mistake you have caught. इतनी बारीक गलती पकड़ी, वेरी गुड। बेटा एक वचन बहुवचन जानते हो नेहा? एक मैं लड़का, सदाबहार। 2 लड़के, 3 लड़कियां, 4 गैया। बेटा तुम इंग्लिश में एस लगा दो तो बड़े आसानी से बहुवचन बनता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नहीं समझे बेटा बात? सर मैं सदाबहार गाना गा सकती थी। वेरी गुड, वेरी गुड। रोशनी इज रेस्ट। I could play volleyball. मैं वॉलीबॉल खेल सकती थी। बेटा किसी को कोई भी सेंटेंस लिखना हो तो हेडिंग के नीचे लिख सकते हो, हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। कोई भी एक सेंटेंस लिख सकते हो ताकि आगे कल अपन अलग अलग सब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है? नम्रता दीदी। नम्रता इज डन। नम्रता आर यू रेस्ट? Yes, sir, I am rest. ओके। I could run 10 kilometer when I was 10 years old. मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकती थी जब मैं बेटा 10 यहाँ साल एक प्रपोजिशन लगेगा, कोई बता सकता कौन सा? चलो हम बता देते हैं, फॉर लगेगा, फॉर 10 किलोमीटर्स। I could run for 10 kilometers when I नहीं was पूरा बोलो यार, ऐसा नहीं, लौटा ही नहीं, पूरा बोलो। I could run 10 kilometer. I could run for 10 kilometers when I was 10 years old. मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकती थी जब मैं 10 साल की थी। बेटा सुन लो, जब इस तरह के डबल सेंटेंस बनते हैं तो ये नियम लगता है, बाद वाला पहले आ जाता, पहले वाला बाद में। बहुत खूबसूरत लगता है, बोल के देखो तुम्हें खुद ही को अच्छा लगेगा। मैं 10 साल की थी तब मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकती थी। वो ऐसे ही बनते हैं। तो इट इज 8 o'clock, इट इज 2 past 8, इट इज 2 past 8, 8:02 हो गए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू, सी यू टुमारो।